साथियों का इस करंट अफेयर्स के क्लास में स्वागत है। जैसे कि पिछले क्लास में हमने आप लोगों के साथ चर्चा किया था, जो अलग अलग टॉपिक्स थे उन सारे विषयों को लेकर के। आइए इनको और आगे समझते हैं, देखते हैं। जैसे कि लेट्स स्टार्ट लाइक ये स्पोकन इंग्लिश में आपको मदद करेगा, साथ ही साथ एक प्रोसेस होगा। प्रोसेस राइटिंग के आधार पे आप समझ पाएंगे। एक कॉम्प्रिहेंशन में आप इसको यूज कर सकते हैं। Like went to consult the post office and discussed with him. He said that no records were available for any receivable post for me. I have to submit an application regarding my current address of accommodation. Further, incidentally, the postman have visited the locality. I had a conversation with him. He said that no posts were sent so far for me. Positively, he responded that if any such postal documents would be received by the post office, he will certainly deliver it to the person to whom it may concern. So let's start about some video review of the video footage is available on YouTube channel and internet. I wrote it on 27th January 2022. Like based on the desk review of the video presentation delivered by the Secretary General of NATO with reference to the interventions of the United States of Soviet Russia for resolution of the international conflicts. He especially highlighted about the significant needs of the promotion and incorporation of the culture of the dialogue and diplomacy, rather emphasizing on deployment of the army personnel and forces into the constitutional sovereign territory of an independent nation. In another video presentation, the Secretary of the State of the United States of America, Mr. Antonio Blinken, had also endorsed the foresight recommendations and suggestions for promotion and application of the dialogues and diplomacy for resolution of international conflicts. मतलब उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए आपको डिप्लोमेसी एंड डायलॉग की आवश्यकता है, जिनसे कि इन सारी चीज़ों को आप मतलब रिजॉल्व कर सकते हैं। फिर इन अनदर मीडिया पैनल डिस्कशन, द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया मिस्टर लॉरो expressed the concerns of Mr. President Putin that they are solemnly intended to implement the process of dialogue and diplomacy. Means if there are certain kind of conflicts among or between the nations, then the conflict should be resolved through the process of dialogue for negotiation on the matter of disputes, so that disputed matter could be resolved through peace accords. So they promote such kind of culture where peace could be established through dialogue and diplomacy by resolving the matter of disputes. So, in another video briefing by the Honorable Secretary General of the United Nations, he have persuaded or suggested or facilitated, arbitrated or instructed. You can opt for any of these words. These are usable. The global community to reduce the chances for armed conflicts and especially emphasized for neutralization or nullification or adherence with the norms of adopting preventive restrictions or maintaining restraining approach for minimizing or reducing any vulnerable instances of such attack on civilian areas for the safety of the life of the inhabitants of the conflicted zones, so that life could be saved properly and humanitarian reliefs could be provided to them. The synopsis of the communication indicates adaptation of global consensus for resolving conflicts through dialogue and discussion. Video links are as follows. You can follow these video links by clicking the links or like searching the link on YouTube channel. NATO Secretary General Jens Stoltenberg hold a press conference. You can watch the brief statement by watching this video, and transcribes are also given there, so you can note down the statements and verbatim given into those specific video lectures that will help you to improve your performance. Then Normandy format stocks. US and allies won't budge our fears of Russian inventions. It's a kind of like a countervailing effect when the escalated tensions are being discussed in a manner that how the power equilibrium could bring establishment of peace in manner of further escalation of armed tension, because those things were happening those days.
then human cost of war in cities is not inevitable. Even Secretary General tells that if there are war, that is not good because that causes harm to the life of the people. Indian Central Asia Summit today on 27 January 2022. Then, like Mohalla Clinic is operating around your circle. If you are studying in Mukherjee or nearby coaching centers, you can visit to locality. You can get medical support from family health clinic established in our locality. So I would like to share my observations about Sri Mahabharata reading एज कल 1652 पन्नों तक पढ़े थे और ये जहाँ अभी रह रहा हूँ उसके बारे में बताया कि इसके बाद क्या है, रेंट एग्रीमेंट बनवा करके आप लोग रहें। रेंट एग्रीमेंट बनाने से आपको आसानी होगी। उस बात होती है कि और आपको समझने की चीज़ है कि अगर कहीं कोई हिंसक झड़प होता है, लाइक इफ देयर आर सर्टेन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स और fight between peoples, then what could be causes? If you will understand, you could better resolve the dispute. लाइक हिंसक झड़प होने के क्या कारण हो सकते हैं? लाइक ज़्यादा तंग करेगा कोई राष्ट्र आदमी औरत किसी राष्ट्र आदमी औरत को, तो वह राष्ट्र आदमी औरत क्या होगा? तंग हो जाएगा। तंग करने के कई प्रकार हो सकते हैं। इसके बाद जिसे तंग किया गया उसके विचार भावना में जो तंग किया है उसके विरुद्ध गुस्सा, क्रोध, दंडित करने का, प्रतिशोध करने की भावनाएं विचार आ सकती है, आती हैं। ऐसे में चाहे जिसके भी कहने पर जो कोई तंग कर रहा है वह तंग होने वाले के निशाने या टारगेट पर आ जाएगा। ऐसे में जिन दोनों के बीच में सीधे संपर्क हो रहा है, यानी कि जो व्यक्ति या राष्ट्र किसी के कहने पर किसी व्यक्ति या राष्ट्र को तंग कर रहा है, कोई राष्ट्र ए है, राष्ट्र बी को मान लिया तंग कर रहा है, तो राष्ट्र बी क्या हो जाएगा? तंग हो जाएगा, महसूस करेगा। ऐसे में वह तंग हो जाएगा तो तंग करने वाले को दोषी और स्वयं को पीड़ित समझेगा, ऐसी भावना आएगी। ऐसे में वह उस व्यक्ति या राष्ट्र के प्रति क्रोध की भावना से भर जाएगा और वैसे बात करेगा या झगड़े की परिस्थिति आएगी। ऐसे में समझाने के लिए वह प्रतिशोध करेगा, करेगी। तो यदि सुधारात्मक पहल नहीं होती हैं तो फिर यह बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा या फिर प्रत्यास्था की सीमा, लॉस ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, इसको आप समझेंगे कि जैसे मान लिया एक रबड़ है, रबड़ को आप खींचते हैं, उसके बाद छोड़ते हैं तो रबड़ क्या होगा? एज इट इज हो जाएगा। लेकिन उसको ज़्यादा खींच दिया तो क्या हो जाएगा? वो टूट जाएगा। उसी तरीके से चीज़ होती है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होती हैं, CBM। इस CBM को मेंटेन करने के लिए टॉलरेंस ज़रूरी होती है और आपस में नेगोशिएशन ज़रूरी होती है। अगर उसकी कमी हो गई तो रिलेशनशिप क्या होता है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, वो प्रभावित होता है। अब देखें, ऐसे में तंग करने वाले दोषी व्यक्ति या राष्ट्र के विरुद्ध वह पीड़ित महसूस करने वाला जो सहिष्णु या टॉलरेंस वाला व्यक्ति या राष्ट्र के प्रतिनिधि से सीधे स्तर पर संवाद करेगा कि भाई देखिए हमको ऐसा ऐसा परेशानी हो रही है, हमारे देश पे इस तरीके का चीज़ हुआ है। तो क्या करेगा? अपना इंटरनेशनल वो सपोर्ट जुटाएगा, इंटरनेशनल सपोर्ट की व्यवस्था करेगा और उसके आधार पे फिर जो इंटरनेशनल आर्बिट्ररी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। ऐसे में यदि वह सुधारात्मक पहल नहीं करता है तो खींच की भावना आएगी। ऐसे में वह किसी मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति, मंच, प्लेटफॉर्म, फोरम फॉर आर्बिट्रेशन पर बोलेगा, बोलेगी या शिकायत करेगा, करेगी। यदि ऐसे पहल के बाद सुझाए, सलाह या विवाद निपटारे की विधि को दोषी मानता है तो स्थिति सही होगी, तनाव संघर्ष नहीं होगा। निपटारे की विधि जो है, दैट हाउ कॉन्फ्लिक्ट कुड बी रिजॉल्व, जैसे कि मिन्स्क एग्रीमेंट की बात की गई थी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के, उसमें जो प्रोविजंस हैं उसको अगर वो लोग मानते हैं तो क्या होगा? उनका लड़ाई रुक जाएगा और आगे फिर वहाँ पे शांति बहाल हो जाएगी। इन सारी चीज़ों को समझने की बात है। ऐसे में इनकी संज्ञान होने के बाद भी स्थिति व्यवहार में सुधार के लिए धैर्य, पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार करना ही सहिष्णुता की निरंतरता, परसिवरेंस ऑफ द टॉलरेंस है। यह समझ और संतुलन बनी रहे, इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आप लोग भी प्रार्थना करिए, चूँकि जब शांति रहेगी तो वैश्विक इकॉनमी क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। क्योंकि पैंडेमिक के पीरियड से हमारा देश, दुनिया आगे गुजर रहा था, इसके लिए यह स्टेबिलिटी आने के लिए ज़रूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों के बीच में शांति स्थापित रहे। उनकी प्रेरणा से मैं चाहता हूँ और वे मुझे हिंसा से दूर रखते आए हैं, इसके लिए उन्हें सादर धन्यवाद। कुछ लोग क्या होते हैं? एथिस्ट होते हैं,
जिनको भगवान पे विश्वास नहीं होता। और कुछ लोग क्या होते हैं जो कि भगवान के डिवोटी होते हैं, तो उनकी ये ट्रस्ट होती है कि एथिकल वैल्यूज़ जो हैं वो एथिकल वैल्यूज़ को लोग ऑबे करेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से जो कॉन्फ्लिक्ट है उस कॉन्फ्लिक्ट को आगे रिजॉल्व किया जाएगा। हम लोग इसके लिए प्रार्थना भी करते हैं, यादें विसर्बोते सूक्ष्मारूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। फिर आगे देखते हैं तो कुछ WHO का कंकरेंट गाइडलाइंस लगातार आता जा रहा था, लाइक गाइडलाइंस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ केयर that need to be followed so that people could feel healthy during the period of uncertainties caused by that COVID-19 and its related impact on the regulation of the social life of the people. You can watch those videos and learn about the things. फिर बात करते हैं रिमार्क्स बाय WHO सेक्रेटरी जनरल रिगार्डिंग neglected tropical diseases. Like there are certain tropical diseases that are being neglected that need to be taken into the consideration for their proper management so that further outbreak of epidemics or pandemic could be controlled and its related economic cost onto the life of the people could be balanced properly. फिर बात करते हैं इसमें जो चीज़ है लाइक IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट्स टू रिव्यू आफ्टर, और यू कैन वॉच IMF हाउ दे आर प्लानिंग टू डील विद द अनसर्टेनिटीज so that the global economy could be stabilized and this world could save the economic what we can say jolt down as it happened during the period of 1929, the global economic slowdown. See, Gita is a good book. If you will read, you will know, you will understand. So there are certain code words that will help you to remember the name of the eminent dignitaries, personalities. As I am reading Mahabharata, there are people working there. They are resolving the conflicts there. महात्मा गांधी की शहादत दिवस थी ये 23 जनवरी को, हम उनको याद करते हैं और उनका एक बहुत बड़ा योगदान है शांति स्थापना के लिए हमारी दुनिया पे। You can write that will become your like a knowledge footprint as we learn about DNA, double helix model of DNA. EcoSoc is a good organization. You can watch about those things. फिर पढ़ें, आप चाहें तो बोल करके पढ़ सकते हैं। उपांशु मतलब बिना बोले हुए पढ़ लिया उसको उपांशु कहते हैं, बोल करके कह दिया उसको मौखिक कहते हैं। मौखिक, वाचिक, उपांशु 3 तरीके से किताब पढ़ते हैं। सो आपके जो कोर्स बुक्स हैं उनको आप रेगुलर पढ़ेंगे, इनसे आपको काफ़ी मदद मिलेगा और आप अच्छा से अपना कर पाएंगे। फिर इसको आगे पढ़ी है। अब देखिए हमारे देश में जो बजट की बात है उसको लेकर के वीडियो लिंक को आप फॉलो करेंगे तो समझेंगे। लाइक राष्ट्रपति का बजट पूर्व अभिभाषण है, सतत विकास के विभिन्न मापदंडों पर संतुलित बजट था। हमारे देश ने 2022 की शुरुआत में जो बजट पेश किया उसमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया कि हमारा देश इस अनसर्टेनिटी ऑफ पीरियड से अपने आप को संभालते हुए और विकास के राह पर आगे बढ़े। फिर ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्रोसेस टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ थाउट्स, लाइक जो थाउट एक्सचेंज होती हैं उनका क्या प्रोसेस होता है, एक कॉम्प्रिहेंशन है। इसको सॉल्व करेंगे आपको बहुत सारा थाउट मिलेगा। So let's go through this. Observation of the process to understand the process of exchange of thoughts, like management of the business of trade and exchange of the services through delegation of the information through multiple means of transmission through the process of explanation about the facts and evidences related with the functions and tasks accomplished through different wings of the departments of the functionaries of the government with reference to the explanations of the duties accomplished to fulfill the functions of the government and its relationship with the continuation of the process of exchange of the ideas and thinking related with life. If you will elaborate it, let me tell you how it could be elaborated. लाइक जो मैनेजमेंट होती हैं बिजनेस एंड ट्रेड का या एक्सचेंज ऑफ सर्विस होती हैं, वो डेलीगेशन होता है इंफॉर्मेशन का, मल्टीपल मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब उसमें कई तरीके से क्या किया जाता है, कम्युनिकेट कर करके ईमेल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, टेली कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से उन सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है, जिसमें एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि क्या क्या चीज़ है। अगर मान लिया प्रोडक्ट एंड सर्विस के बात बता रहे हैं तो प्रोडक्ट की क्या क्या खासियत है,
सर्विस की क्या क्या यूटिलिटीज हैं, उसको एक आदमी क्या करता है, जो सेलर होता है वो बताता है। तो बायर जो होता है उनकी चीज़ों को लेकर के समझेगा, उसके बाद अपना डिसाइड करेगा whether I have to invest in this project or not. In this manner, the cycle of business continues and completes. तो इसमें क्या है भाई कि जो फैक्ट एंड एविडेंस है रिलेटेड विद फंक्शंस एंड टास्क अकम्प्लिश थ्रू डिफरेंट विंग्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ द फंक्शनरीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड सिमिलरली गवर्नमेंट फंक्शंस. Government has different departments, and different departments are being operated by executive officers of the respective wings, and they communicate to exchange informations for resolution of the disputed matters. इसमें फिर बात करें आगे तो एकम्प्लिश होती हैं फुलफिल द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड थिंकिंग रिलेटेड विद लाइफ. Exchange of ideas and feelings related with the life of the inhabitants to explain and understand the requirements of thoughts and feelings to facilitate the readers and viewers about the process of establishment of the task and its accomplishment through accountable involvements of the skilled group of individuals. It needs some sort of what we can say integrity and obedience of the basic protocols for accomplishment of the delegated duties to the personals. तो जो लोग होते हैं उनको जो जिम्मेदारी दी गई है उसका वो अगर सही से निर्वाह करते हैं तो वो जो काम है वो सही तरीके से पूरा होता है. फिर महाभारत तो पढ़ ही रहा था, ये सारा चल रहा था. अब एक बात और हमको देखना है कि वीडियोग्राफी की बात है या फिर मोबाइल फ़ोन और जो आपका व्यक्तिगत संवाद है या वीडियोग्राफी है, इसके आधार पर लाइक आप जो मोबाइल फ़ोन चलाते हैं उसका एक रेगुलेशन है, उसको देखने की बात है कि क्या आपसे किसी ने बात किया कि आप मोबाइल फ़ोन पे क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं. इनसे रिलेटेड जो चीज़ है इनका एक रिस्ट्रिक्टेड जो रेगुलेशंस है वो कहीं ना कहीं से आपकी प्राइवेसी और आपके लाइफ को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा. चूँकि आपसे कोई लिखित सहमति भी नहीं लेता है, किसी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट पर अगर आप हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो आपको आपकी इजाज़त के बिना कोई किसी रियलिटी शो में या कहीं पे कोई नहीं बुला सकता है या फिर कहीं कोई ऐसा नहीं कर सकता है जिसकी वजह से आपको पता ना रहे और आपको पब्लिक लाइफ में एक्सपोज कर रहा है. दैट इज़ नॉट गुड. इसके लिए आपका अपना राइट है, उसके लिए आप अपना देख सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को लेकर के. ये तो पोस्ट डे और सारा चीज़ का बात है, उनकी लिखी बात है. आगे चलते हैं. लाइक वित्त मंत्री सीतारमण जी द्वारा बजट भाषण दिया गया और ये बजट भाषण को सुने, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था. अब एक बात है कि आप जो मेहनत करते हैं तो आपका लाभ आपको मिले और अन्य लोग जो हैं उनका बात अलग है. फिर आप पढ़ते रहें. अब देखिए कुछ और बात बताते हैं. जैसे कि विगत 2020-21 के दौरान कोरोना कालखंड के दौरान विविध विषयों पर शोध एवं अनुसंधान के आधार पर रिपोर्ट प्रेषित की है. मैं एक संस्था के लिए अनुवाद का कार्य करता रहा हूँ, उसके आधार पर आगे चीज़ें चलती रही हैं. अब बौद्धिक कार्यों और प्रतिवेदन को समर्पित करने के अथक एवं अनवरत प्रयास भी हुए. मुझे किसी भी प्रकार का कोई पुरस्कार, आर्थिक सहायता न तो डिजिटल माध्यम से, न ही किसी अन्य माध्यम से प्राप्त हुआ. फिर भी एक हमारा होता है फंडामेंटल ड्यूटी, उसको लेकर के आदमी काम करता रहा और आगे गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी किया कि इसको लेकर के वो कंसिडर करें. आगे आपको साइंस रिलेटेड भी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड भी लेक्चर्स हैं, वो भी हम इसमें अपलोड करेंगे जो कि आपको मदद करेगा. मेहनत की बात आपको मिलनी चाहिए और इन सारी चीज़ का बात है. फिर कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, वो भी समझने की बात है. वो हमारा आर्ट एंड कल्चर का इंटीग्रेटेड पार्ट है. अब आगे चलते हैं कि यदि आपको कहीं मौका दिया जाए, इसको थोड़ा समझते हैं. इफ़ आई वुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट एंड एक्सप्लेन और डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंट इश्यूज ऑफ कंसर्न्स फॉर द ह्यूमैनिटी, आई वुड बी डिलाइटेड टू विजिट, participate, observe, document, analyze and submit my own observation report about the matter of the discussion on significant issues of public health management, education and social development at various national and global level interface of organization. However, I am finding myself at comfortable position for dealing with the information broadcasted through video presentations, audio presentations and documents available on this digital interface of communication termed as mobile. I term mobile as machine of binary interpretation of lingual expressions. Let me explain my this observation, this logic. Mobile, machine of binary interpretation of lingual expressions. Whatever we express in our respective language. Like I am speaking in English at this moment of time. मैं हिंदी में बोल सकता हूँ,
मैं अभी हिंदी में बोल रहा हूँ, ये हमारा लैंग्वेज हो गया। सिमिलरली पीपल फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स ऑफ द ग्लोब communicates in their respective dialects, respective language. But those verbatim, those sounds, those vocals are intercepted by this digital device, and it must be encrypted into the binary language like 1001, and then the machine language further interprets it into the human interface of language of understanding. In this manner this digital device functions. बात करते हैं, इसको करते हुए आगे बात है मौसम को लेकर के हमको ध्यान देने की बात है, क्लाइमेट चेंज का जो चीज़ है उसको ध्यान देने की बात है। लाइक मौसम सामान्य है, यमुना में ठंडे जल में स्नान किया, सुबह के समय उषा काल में पानी को हल्का गर्म करके स्नान किया। ठंडा का मौसम था, फरवरी का मौसम था। कोरोना का जो संक्रमण का डर अब मन में कम हो गया, फिर भी वातावरण के तापमान, वायु दाब, आर्द्रता के उतार चढ़ाव से शारीरिकी पर प्रभाव पड़ता है, और ऐसी सामान्य है कि आगे भी ऐसी परिवर्तनों के अनुकूल शरीर में परिवर्तन होता रहेगा। आप अपने बॉडी फिजियोलॉजी के प्रति अगर आप सेंसिटिव हैं तो आप देखिएगा जिस तरीके से वातावरण का तापमान बढ़ता है, वायुमंडल वायुदाब जो बढ़ता है, या जो मॉइस्चर ह्यूमिडिटी होती है, उसमें जिस तरीके से इन्वायरमेंट में चेंज होती हैं, उस आधार पे आप देखिएगा कि आपका हेल्थ स्टेटस है उसमें भी आप चेंज महसूस करते हैं। तो ये एक हमारे लिए ध्यान देने वाली बात है। और ऐसे ही सामान्य है कि आगे भी ऐसे परिवर्तन के अनुकूल शरीर में परिवर्तन होता रहेगा। छोटे शिशुओं को टीकाकरण के लिए सामान्य शेड्यूल के साथ ही कोरोना को भी शामिल कर देना चाहिए। कोरोना का जो आपका वैक्सीनेशन है उसको भी सभी को स्वस्थ रहने की हम लोग शुभकामना दे सकते हैं, भगवान विष्णु से प्रार्थना कर सकते हैं। और गीता का पाठ हमारे विष्णु वो भी गांधी जी भी करते रहते थे, इसलिए उनसे भी एक प्रेरणा लेने की बात है। अब आगे देखिएगा तो सिक्योरिटी काउंसिल ऑन यूक्रेन जो चीज़ बोलती है, यूनाइटेड नेशंस की वीडियो को अगर आप फॉलो करते हैं तो उनसे आपको प्रॉम्प्ट एंड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलता है सारे कंटेंट्स को लेकर के कि किस तरीके का क्या चल रहा है, जिससे कि आपके पीटी एंड मेंस में ये जो ज़रूरी सवाल हैं वो आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। आगे इसमें बात है लाइक पॉजिटिव परसुएशन फॉर रिजोल्यूशन ऑफ द परसेप्चुअल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कैलिब्रेशन ऑफ द consensus of the member states for expression of their commitments for adherence with the principle of preventive diplomacy for peace reconciliation as per the mandates of the UN Charter। मैं थोड़ा इस चीज़ को बताता हूँ। इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जो UN चार्टर कहती है, UN चार्टर का जो एक प्रावधान है वो चाहता है कि पीस स्थापित करने के लिए, शांति बहाली करने के लिए प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी करनी चाहिए। इसके लिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर भी प्रमोट करते हैं। आप उनके वीडियो लेक्चर को देखिएगा, सुनिएगा, जो न्यूज़ आती हैं उनको देखेंगे। प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी करती है कि जिस विषय को लेकर के मान लिया विवाद होने की संभावना है, अगर उस विषयों को जो संवाद चल रही हैं उसमें शामिल कर दिया जाए और उनसे रिलेटेड मुद्दों को अगर सुलझा दिया जाए तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो फर्दर एक्सकेलेट होने से रुकेगा, मतलब उसमें आगे तनाव नहीं बढ़ेगा और वो शांति हो सकती है। इस तरीके से ये चीज़ आपका पूरा होता है। तो यूएन के जो मेंबर्स हैं वो लोग क्या करते हैं, इसके लिए पॉजिटिव परसुएशन कहते हैं। पॉजिटिव परसुएशन इन द सेंस कि आपस में उस तरीके से बात करते हैं कि सकारात्मक बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए चर्चा करें ताकि संबंधित विवादों का निपटारा किया जा सके। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइक आई रिक्वेस्ट द गॉड टू ब्लेस द डेलीगेट्स विद गुड हेल्थ, हैप्पीनेस and well-being of their beloved peoples so that they can perform their duties effectively in solidarity with you for a proper and peaceful co-inhabitable endurance of the continuation of the life in harmony for our offsprings. These are the basic objectives as conceived by Sustainable Development Goal 2030. And admiration to the grace of the God pervading the holy instincts of the capable authorities in charge for building a better and secure future for us. Cordial thanks and respect to you. As I wrote it, I have submitted and communicated. ओम नमो नारायण। भगवान का आशीर्वाद सबको मिले और आप लोग अच्छा करें। ये WHO का एक ब्रॉडकास्ट है, इफ़ यू कैन वॉच। WHO recent resolutions and declaration of the commitment for facilitating the member states for securing our health। WHO क्या करती रही है, अपना टाइम टू टाइम अपने स्टेटमेंट्स को जारी करती रही हैं कि वो क्या करेंगे, मेंबर स्टेट्स के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए अपने तरीके से अपना बेहतर योगदान देंगे। जय हिंद, जय भारत की बात है। एक NCC कैडेट के रूप में हमने जो देखा सीखा
एकता और अनुशासन की बात है, उसको प्रमोट करने की बात हमारी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखते हैं कि ऑनरेबल सेक्रेटरी जनरल हैड एक्सप्रेस्ड हिज कंसर्न्स रिगार्डिंग द मैटर ऑफ रिलेटेड विद द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द इथोपियन सिटीजन्स। इथोपिया में उस वक्त कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। इथोपियन किस रीजन में है आप मैप में देख सकते हैं, और उस हिसाब से उनसे रिलेटेड जो पार्ट है लाइक उनका क्या है जियोग्राफिकल कंडीशन, कैसे उनको रिजॉल्व किया जा सकता है, तो जो एक्सपर्ट लोग बोलते हैं उन सारे विषयों को लेकर के आप लिखेंगे, आपको अच्छा नंबर आएगा। आगे देखते हैं कि इस प्रस्तुति में महानुभाव ने गिन्नी बिसाओ, डीपीआर, कोरिया एंड अन्य संबंधित विषय पर चर्चा की है। इस विषय को आप समझिए, देखिए, इनसे आपको मदद मिलेगा। फिर आगे चलते हैं। लाइक वाटर सप्लाई शॉर्टेज क्राइसिस दिल्ली में हुआ था, 3 फरवरी 2022 की बात है। आप अगर न्यूज़ देखेंगे तो उसको आप समझने की कोशिश करें। लाइक एज रिपोर्टेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द दिल्ली जल बोर्ड, अमोनिया लेवल ऑफ रिवर यमुना हैज़ इंक्रीज्ड due to the excessive deposition of the pollutants from the neighboring state of हरियाणा। ऐसा न्यूज़ में आया कि जो समी जो आपके नज़दीकी जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ से अगर पानी में अगर प्रदूषक तत्वों को डाला जाएगा तो उससे क्या होगा, पानी का प्रदूषण लेवल बढ़ जाएगा, और उसमें अमोनिया लेवल बढ़ने के कारण से लोगों को समस्या की बात थी, ऐसा न्यूज़ आया था। द वाटर क्वालिटी इज़ वल्नरेबल ऑफ सीरियस हेल्थ हैजार्ड्स, it should be considered as a serious problem for the public health. Although water supply is one of the significant factors for facilitating the inhabitants to look after their essential needs, however, consumption of contaminated water may cause more than 80 kinds of waterborne diseases. Hence, preventive measures would reduce the probabilities of associated consequences. इस बात को लेकर के समझें। वीडियो लिंक है अंडरस्टैंड करने के लिए। रिस्क एसोसिएटेड विद अमोनिफिकेशन ऑफ द वाटर, इसमें क्या क्या है वो दिया हुआ है। लाइक वीडियो लिंक फॉर अंडरस्टैंडिंग द एसेंस ऑफ अमोनिया टेस्ट, अमोनिया टेस्ट को लेकर के दिया गया है। हाउ टू रिड्यूस अमोनिया लेवल, इसकी बात दी गई है। फिर इसमें और आगे चलें, वो सारा चीज़ आपको मदद करेगा, इनको फॉलो करते हैं देखते हैं। तो अब इसमें एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर जॉन कैम्पबेल, एक बहुत अच्छा चीज़ को लेकर के हेल्थ रिलेटेड गाइडलाइंस देते हैं। इनको फॉलो करने से आप इनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लाइक इन्होंने जो बताया, योर infographics presented at 5.58 of this video represents significant trends of the phase of the physiological adaptation of the body when the human got induced to the change into the environmental circumstances, which could be measured by observing the response of the body with reference to the meteorological observations as temperature, moisture and environmental pressure। इसके लिए मैंने पहले चर्चा किया कि जिस तरीके से तापमान जो हमारे आसपास के वातावरण का अगर वो बढ़ता घटता है, मॉइस्चर आर्द्रता बढ़ती घटती है, और जो वायुमंडलीय दाब बढ़ता घटता है, उसके सापेक्ष में हमारे जो शरीर का जो स्वास्थ्य है वह निर्धारित होता है। इसके प्रति हमें संवेदनशील रहना चाहिए। द इन्फोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन अबाउट द ट्रेंड्स ऑफ एडॉप्टेशन, थर्मोस्टेट एंड ऑस्मोरेगुलेशन। थर्मोस्टेट के बारे में आप जानते हैं कि आपकी जो हाइपोथैलेमस है जो दिमाग में रहती है, वो किस तरीके से आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करता है। ये साइंस है, इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देखिएगा कि थर्मोस्टेट क्या होता है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, जैसे गर्मी के दिनों में आपको पसीना ज़्यादा निकलता है, जाड़े के दिन में देखेंगे आपका त्वचा का जो सब क्यूटिनस लेवल है वो थोड़ा सा सिकुड़ सा गया है। तो इनसे रिलेटेड चीज़ को लेकर के ये एक मेजर करने वाला बात है। परहैप्स इट कुड बी रेफर्ड टू द नेचुरल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन as proposed by Charles Darwin. Here, with reference to the Omicron, it should be considered as natural instincts of the body of the individual for partial evolution with reference to the change into the environment. Environment में जो change होती है, इसके reference में जो partial evolution होता है individual का, उसको इसमें समझा जा सकता है। इनसे related जो जानकारी है वो दिया है। With reference to the observation of the immune response mechanism of the body, the trend would be a focal point of reference for observation. Once we will be observing the trends in shifting of the environmental conditions from winter to summer after autumn। इसमें जिस तरीके से होता है वो चीज़ को हम देखें समझें। सरस्वती माता की जय हो। आप संघर्ष करते रहें, लिखने का प्रयास करें, सीखने का प्रयास करें। कुछ पॉजिटिव चीज़ मोटिवेशंस भी आपको इसके साथ साझा करूँगा जो कि आपको आगे मदद करेगा। अब पढ़ाई में हमें दो चीज़ को समझना है, ध्यान देना है। आप जो तैयारी कर रहे हैं तो यानी कि अध्ययन का उद्देश्य के मूल में दो मुख्य लक्ष्यों की ओर हम उन्मुख रखते हैं।
पहला ज्ञान के वरदान की अभिलाषा है, प्रेयर टू ऑब्टेन गुण, कि भगवान आपको क्या करें उस तरीके से दे दें, ज्ञान दे दें जिस तरीके से बुद्ध को इनलाइटनमेंट मिला था, जिस तरीके से महावीर को इनलाइटनमेंट मिला था, जिस तरीके से विवेकानंद ने अपने आप को आत्मबोध प्राप्त किया। एक तो वो उद्देश्य होता है, और दूसरा है कि प्राकृतिक संसाधनों एवं घटनाओं से जुड़े रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं, एफर्ट्स टू लर्न सीक्रेट्स। तो ये आपका पार्ट होता है, इनसे रिलेटेड चीज़ों को आप समझेंगे। अब आप वीडियो का डेस्क रिव्यू करेंगे तो उनकी आपको जानकारी मिलेगी। द प्रिंट क्या है, एक बहुत अच्छा आपका यूट्यूब चैनल है जिन पे आप बहुत सारा जो ज़रूरी चीज़ है, सोशल इश्यूज़ को लेकर के, करंट अफेयर्स को लेकर के, इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स को लेकर के, क्लाइमेट चेंज के मैनेजमेंट को लेकर के, इकॉनमी, मतलब समझे कि जो आपका सिलेबस का टॉपिक है उन सारे विषयों में इनको बहुत ज़रूरी ज़रूरी बातों को आपको दिया जाता है। आप इनको फॉलो करें, ये आपको मदद करता है। ये सारे लिंक्स हैं। फिर रिलेवेंस फॉर पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक गेम्स है, इसमें क्या है, इसका महत्व देखना कि कैसे हमारा ग्लोबल इंडिया का एक इमेज ब्रांड बढ़ता है, इसमें कैसे मदद करता है। मॉडल यूएन को लेकर के डिबेट हुआ था, मॉडल यूएन को लेकर के रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने भी बात कही थी कि मॉडल यूएन के लिए क्या रिफॉर्म होना चाहिए, उस पर ये इस प्रेजेंटेशन में लिंक दिया गया है, जो कि एक हेल्पफुल चीज़ है। फिर डिफेंस मिनिस्टर इसके बारे में क्या हमारे बात को कहते हैं, राजनाथ सिंह जी, इनकी बात को समझने के लिए आप इसको देख करके समझ सकते हैं। आपके अंदर पढ़ाई के प्रति मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए एक वीडियो है, ये आपको बहुत ही मदद करेगा, सरस्वती अमृत बानी, इसको सुनिए, इससे आपका काफ़ी एक लाभ होगा। आप सभी से प्रार्थना है कि आप लोग भी वरदान रहस्य लें, यानी कि समझें कि कैसे एक दूसरे को आशीर्वाद देना है, और जो सीक्रेट्स हैं उनको जानने का कोशिश करें, ये आपको मदद करता है आगे। श्री दुर्गा सरस्वती मध्यम चरित्र के श्रवण से माता सरस्वती की आराधना करें। ओम ऐं नमः एम माता सरस्वती का मंत्र है, इनसे आपको बहुत सारा जानकारी मिल सकता है। जैसे सरस्वती पूजा हो रही थी, वहाँ गए, शामिल हुए, प्रसाद लिया, ये सब हमारा क्या है, सोशल एक्शन है, जिससे कि लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। अब लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे रिलेटेड बात है, वो हमको समझते हैं। एक बात मैं आपसे साझा कर रहा हूँ जिसको आप भी अपने प्रैक्टिस में ला सकते हैं। यदि आप अपने मोबाइल पर जिस तरीके से व्हाट्सएप मैसेज टाइप करते हैं, आप अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स में उन सारे मैसेज को टाइप करके अपना नोट्स भी बना सकते हैं। इनसे रिलेटेड एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। यदि मैं अपने मोबाइल फ़ोन पर निरंतर लिखता आ रहा हूँ, इससे बहुत ज़रूरी विषयों पर भी कई रिसर्च पेपर भी लिखे हैं। मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग करने वाले कंपनी एवं विभिन्न जरूरी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपर्स द्वारा मोबाइल फ़ोन पर एप्लीकेशन डाउनलोड करते समय इस पर उपलब्ध सूचनाओं को हासिल करने के लिए स्वीकृति भी मांगी जाती है। जैसे आप मोबाइल फ़ोन पर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा तो आपसे बहुत सारा परमिशन मांगेगा, उनके इस चीज़ का रेगुलेशन होना चाहिए। कहीं इसके आड़ में वो लोग आपके व्यक्तिगत जानकारी को साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो मोबाइल एप्लीकेशन को जो डेवलप करने वाले हैं उनके बिहेवियर्स का रेगुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी इस फ़ोन के डिस्क्रिप्शन में देखें तो इसमें डिवाइस का नाम रेडमी है, डिवाइस का मॉडल ये है, ए वर्ज़न है, एंड्रॉयड वर्ज़न ये है, इसमें ये सारा चीज़ को था। लेकिन एक बार फ़ोन हमारा चोरी भी हो गया था, उस बात का अलग बात है। फिर अगर आपका फ़ोन चोरी होता है तो आप थाने में रिपोर्ट करिए, उसके बाद नहीं है तो आप ऑनलाइन कंप्लेंट करिए साइबर कैफ़े से, इससे आपका सारा चीज़ आपका वैसा होता है। फिर आपका जो नंबर है उस नंबर को हमने दोबारा प्राप्त किया, वो सारा चीज़ चला, फिर दोबारा फ़ोन लिया, फिर सारा चीज़ चलता रहा। तो इन सब चीज़ को अपना ध्यान रखने के बाद है, राह चलते समय फ़ोन पर बात न करें, नहीं तो कोई फ़ोन स्नैच कर करके भाग सकता है। अब बात करें कि आप जो जिस नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं, वो डेटा कंपनी वाला का भी तो ऐसा रेगुलेशन होना चाहिए कि आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशंस है वो आपका सिक्योर रहे, और आपकी अपनी जो एक फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिक्योर रहे। अब कौन क्या करेगा उसको देखने के बाद है। एप्लीकेशंस में बहुत सारे चीज़ हैं, लाइक आप अपने मोबाइल के बारे में समझिएगा, जैसे टास्क है, नोट्स है, क्विक ऐप सर्विस है, फ्रेमवर्क है, जियोमी क्लाउड्स है, कॉल सेटिंग है, कॉन्टैक्ट्स है, मैसेजिंग है, कैलेंडर है, सिक्योरिटी है, कैमरा है, गैलरी है, म्यूजिक है, रिकॉर्डर है। यदि इन सारी चीज़ों को आप देखें तो आपको वो मदद करेगा। इसमें वहाँ काम करते थे वो सारा चीज़ का बात था। फिर फ़ोन लिया, फ़ोन को आप MIUI वर्जन देखिए, IMEI देखिए, फिर आप अपने मान लिया अकाउंट बनाया है MI अकाउंट, उसमें आपको सारा जानकारी रहता है, इनको भी आपको रिकॉर्ड रखना है। अब देखिए कुछ ज़रूरी आपका एप्लीकेशन है जो आपको मदद करेगा, जैसे यूट्यूब के माध्यम से आज के समय में बहुत सारा ज़रूरी जो जानकारी है वो आपको मिल सकता है। जैसे आप क्लास अटेंड करते हैं, ऑनलाइन क्लास करते हैं,
उस तरीके का सारा कंटेंट्स आपको एक्सपर्ट के द्वारा जो है वो पोस्ट किया गया है यूट्यूब पे। इसको आप देख करके सीख सकते हैं। व्हाट्सएप क्या करता है, आपको आपस में इंटरेक्ट करने में मदद करता है। पेटीएम भी आपका एक एक्सचेंज करने में मदद करता है मॉनेटरी ट्रांजेक्शन में। फाइल मैनेजर है, फाइल मैनेजर में आप अपने देखते हैं जिसमें आपका वीडियो है, ऑडियो है, या फिर डॉक्यूमेंट्स है, या पीडीएफ है, उन सारी चीज़ों को आप उसमें देखते हैं। गैलरी से आप अपने फ़ोटो को, शेयर मी से आप अपने आसपास के दोस्तों के साथ शेयर करते हैं कुछ कुछ फाइल को। OLX इंडिया में जो पुराने चीज़ हैं उनको खरीद बेचने का है। TOI टाइम्स ऑफ इंडिया जानकारी देती है, न्यूज़ अपडेट आएगा। आरोग्य सेतु आया था, आरोग्य सेतु फिर काम नहीं कर रहा था, लेकिन ये भी एक अच्छा एप्लीकेशन था कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग को लेकर के। आपका जो बैंकिंग का जो मोबाइल एप्लीकेशन है, लाइक बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल हो गया, कैलकुलेटर है, कैलेंडर है, फिर कैमरा है, क्रोम है। क्रोम से तो बहुत सारा जानकारी मिलता है। कंपास हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, डिजिटल वेलबिंग की बात है, डाउनलोड्स हैं, ड्राइव है, डुओ है, अर्थ है, फेसबुक है। अर्थ से आपको जियोग्राफी में काफ़ी मदद करेगा। ये जियो पॉलिटिक्स को समझने के लिए, जियोग्राफी को पूरा करने के लिए काफ़ी मदद करेगा। गूगल अर्थ को आप डाउनलोड कर लें। फेसबुक के माध्यम से जब आप घर से बाहर रहते हैं तो अपने दोस्तों परिवारों के साथ आप अपने सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, जिससे आप अपने आप को सोशली इंक्लूडेड महसूस करेंगे। फाइल मैनेजर FM रेडियो से आपको ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज़ आता रहता है। फ्रंट रो, गैलरी, गेट ऐप्स, जीमेल, गूगल इंडिक कीबोर्ड। गूगल इंडिक कीबोर्ड एक अच्छा चीज़ है जिससे आप अपने मोबाइल पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में अच्छा से टाइप कर सकते हैं। मूवीज़ हैं, हॉटस्पॉट है, हॉटस्टार है, इंस्टाग्राम है, ICICI रेल कनेक्ट है, लेंस है, मैप है, मैसेंजर, MI पे, म्यूजिक, ओपन कैमरा, आउटलुक है। आउटलुक आपका ईमेल का है। फ़ोन, फोटोज़, प्ले म्यूजिक, प्ले स्टोर, पावर पॉइंट्स, रिकॉर्डर, स्कैनर, स्क्रीन रिकॉर्डर। स्क्रीन रिकॉर्डर एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। मैं इसके लिए स्पेशली आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप अपने मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो एप्लीकेशंस हैं, इन स्क्रीन रिकॉर्डर एप्लीकेशंस को आप ले लीजिए। यह स्क्रीन रिकॉर्डर एप्लीकेशन आपको काफ़ी मददगार होगा। स्क्रीन रिकॉर्डर एप्लीकेशन से आपको काफ़ी फ़ायदा करेगा। तो ये इससे जुड़ा हुआ बात हुआ। एक तो ये चीज़ हुई कि स्क्रीन रिकॉर्डर से यह आपको मदद करेगा। अब इसमें आगे देखते हैं तो बात करें, सिक्योरिटी है, सर्विस है, फीडबैक है, सेटिंग है, शेयर मी है, स्काई मैप है, थीम है, ट्विटर है। ट्विटर से आज के समय में बहुत सारा ज़रूरी जानकारी आपको मिलता है। जो रिसेंट इन्फॉर्मेशंस होती हैं उनको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। वेदर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे वेदर रडार से। इन सारे चीज़ों से वर्ड पे आप काम करते हैं। और जूम एप्लीकेशन से आप अभी क्या करेंगे, जब हमारी क्लासेज आपके साथ चलेंगी तो जूम एप्लीकेशन के माध्यम से जो हमारे अलग स्टडी सेंटर्स होंगे उनके साथ जब हम क्लास कांटेक्ट करेंगे तो उनको ब्रॉडकास्ट करेंगे, जो उनको मदद करेगा। अब होता है भाई कि आप ज़रूरी रिपोर्ट्स लिखते हैं, भेजते हैं, तो उससे आपका इनकम भी होना चाहिए। अगर आपको इनकम नहीं मिलता है तो आप अपने आप को थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड महसूस करते हैं। अब आप जो चीज़ लिखे भेजें, इनका लाभ तो लोग ज़रूर लगवा रहे हैं, तो आप भी अपना जो लिखेंगे पुस्तक के रूप में या नोट्स के रूप में सभी को हो सकता है। एक हमारी एक अपेक्षा रही थी, हमने ऐसा रिक्वेस्ट किया था कि भाई जो चीज़ है उसको हमारा एक पेमेंट और सारा चीज़ दिया जाए। सरस्वती पूजा के अवसर पर भगवती की कृपा प्राप्त हो, ये हमारी एक चीज़ रही, वो हमने भेजा। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात होती है तो आई वुड लाइक टू मेंशन, ये आपके लाइफ में भी आपके साथ जुड़ा हुआ ऐसी परिस्थिति आ सकती हैं। थोड़ा इस विषय को देखें, इस कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करें। जैसे एक एजम्पशन है, इस प्रिसाइज को समझें। लाइक माई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वर एक्सप्लॉइटेड, आई हैव लर्नड एंड वर्क टायरलेसली फॉर द पर्पस ऑफ द सर्विस टू द ह्यूमैनिटी, but I have felt that I had been exploited for the purpose of the vestige interest of someone or few person. I have felt that I was cheated. I felt that I was looted. What kind of system it is? I suffered depression. I revived through hard works, and felt intense psychological pressure. What are the causes? Who are the people involved into it? इसमें क्या है, जो IT का जो एक कंसिक्वेंस है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर के, इसको भी ध्यान रखने की बात है। इनको मैनेज करने के लिए जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको मदद करते हैं। तो आप लोग घर से बाहर आए हैं, भारत के अलग अलग हिस्से से आप आते हैं पढ़ाई करने के लिए एजुकेशनल हब में, जैसे मुखर्जी नगर हो गया,
करोल बाग हो गया, वैसे ही भारत के और भी अलग अलग सेंटर्स पे। तो आपका मोबाइल फ़ोन के साथ जिस तरीके से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं परिवार के साथ आईटी के थ्रू, थोड़ा अपने आप को मैनेज करने के लिए ज़रूरी है, ताकि आप साइकोलॉजिकल प्रेशर से बच सकें और अपने लक्ष्य की तरफ आप आगे प्रोग्रेस करते रहें। इनसे रिलेटेड चीज़ है। वे ट्विटर का बात है, ट्विटर में देखिएगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं, उनकी जानकारी मिलती है। जैसे इन्होंने भी बताया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बौद्धिक व्याख्या एवं यथार्थ का शब्दांकन करने की गंभीरता को सुनकर उनके प्रति मन में आदर का भाव उत्पन्न होता है। इनको आप नमस्कार कर सकते हैं, इनका जानकारी को देखिए सुनिए, वो अपना पोस्ट करते हैं। साइबर स्वच्छता पखवाड़ा सर्ट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडवाइस किया गया था, मनाया जा रहा था कि आप अपने डिजिटल डिवाइस को बॉट फ्री रखें। बॉट रिमूवल टूल्स को लेकर के आप कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। क्या भाई, आप जो मेहनत कर रहे हैं, तो मेरी मेहनत से मेरे मातृभूमि की देश भारत में जितनी पुस्तकें प्रकाशित करने से या अन्य माध्यम से कमाई हो रही हैं, उनमें से बीपीएल गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी विद्यार्थियों को जिन प्रकाशित होने वाले विषय को लेकर पुस्तकें प्रकाशित की जा सकती हैं, उन्हें लेकर निःशुल्क प्रिंटेड पुस्तक या और ई बुक्स दी जा सकती हैं। ई बुक्स जैसे कि आप इस लेक्चर को देख सकेंगे, ये आपको मदद करेगा। आप इनका नोट्स बना लीजिएगा, तो आपको बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा। एपीएल गरीबी रेखा से ऊपर के विद्यार्थी को गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित होने वाली पुस्तक की तरह कम मूल्य पर उपलब्ध कराई जा सकती हैं। यदि चीन या किसी अन्य देश के माध्यम से या अन्य माध्यम से इन्हें हमारी धरती के अन्य देशों में रहने वाले लोगों तक भी किसी अज्ञात व्यक्ति या संस्था द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं, तो वे संस्थाएं कौन हो सकती हैं जिनसे प्राप्त लाभ को उन्हें जरूरी कानूनी और औपचारिकताओं के अनुसार देय भुगतान करने के बाद मेरे देश में भेज दिया जाए। इनमें से सरकार के अनुसार जो उचित एवं विधि अनुसार तर्कसंगत लगे, उनमें से सभी देय भुगतानों को चुकाने के बाद पर्याप्त मात्रा में मुझे भी इसका लाभ दिया जाना चाहिए, है कि नहीं। इन सारे विषय की बात है। अब मेरा नहीं, सभी बुद्धिजीवी से जुड़ी विषय है। संभवतः इससे जुड़े विषय के संदर्भ में भी ब्रेन ड्रेन की एवं ड्रेन ऑफ वेल्थ की चर्चा की गई है। लोग क्या करता है, आपका धन को हड़पने का कोशिश करता है, आपका कमाई का चीज़ आपको नहीं देगा, और उसको अगर जानकारी है तो अपने पद और सत्ता के अभिमान में क्या करेगा, आपसे इन्फॉर्मेशन को छुपाएगा। यदि आपसे जुड़ा हुआ जानकारी मान लिया किसी बैंक में आया है, तो आप तो उस बैंक में नहीं हैं, तो उस बैंक के प्रतिनिधि के माध्यम से आपको फ़ोन किया जा सकता है, आपको बताया जा सकता है कि भाई आपका ऐसा ऐसा कमाई हुआ है, इसमें फला फला टैक्स काट करके और सब चीज़ देने के बाद आपका ये पैसा होगा, आप उसको ले सकते हैं। तो लोग क्या करते हैं, रेड टैप कल्चर की वजह से आपके बहुत अच्छी भी कमाई होगी उसको हड़पने की कोशिश करते हैं। ऐसा बेईमानी भ्रष्टाचार का भी चीज़ है। इन सारी चीज़ों को लेकर के भी एक आप निवेदन कर सकते हैं पदाधिकारियों से कि भाई अगर आपकी मेहनत की कमाई से जो इनकम हुआ है उसको देने के लिए आपका जो टैक्स है या फिर जो इम्पोजिबल ड्यूटीज़ हैं उनको आप डिडक्ट करके और आपको आपका पेमेंट का जानकारी दिया जाए, ताकि आप उसको अपने हिसाब से उपयोग कर सकें। एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। दादा भाई नौरोजी का जो सिस्टम है उसको देखिएगा, पढ़िएगा तो उसको समझ में आएगा। और जब आप इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं और आपका चीज़ को इग्नोर किया जाता है, आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जाती है, तभी बहुत दिनों से ऐसी खबर आई है कि भारत छोड़ करके लोग प्रवास कर रहे हैं और सारी चीज़ें ऐसी ऐसी चीज़ है। इनको रोकने के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। लिबरल जो चीज़ है, तो लिबरल उदारीकरण का मतलब क्या हुआ, आपके जरिए जो कमाई है उस कमाई का आपको अधिकार वाजिब रूप से दिया जाए। टैक्स अगर लगाया जाना है तो टैक्स आपका काट करके आपका पैसा आपको दिया जाए। ऐसा ना हो कि आपका पूरा संपत्ति ही हड़प लिया जाए, ये तो गलत बात है। इन सारी चीज़ों को ध्यान देने वाली बात है। इनको लेकर के आप सरकार से अपील कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपके साथ न्याय किया जाए। विकिपीडिया बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको जानकारी देता है। लाइक द कंसेप्ट एंड मैटर रिलेटेड विद द पैरामीटर्स ऑफ ब्रेन ड्रेन and drain of wealth through different means of exploitation of the intellectual property being cultivated through extensive research and development by intellectuals from different fields of studies. Issues related with such research and development for identification and resolution of the essential system of information management as well as regulations of the financial constraints associated with the cultivation of information. However, we have to remain conscious and sincere about it, because monetization of the intellectual labor is essential. But its essence and concerned pattern of inheritance of knowledge under the ambit as explained by the United Nations for the indicators of sustainable development should also be taken into the consideration with due respect and regard for the service of the humanity for the continuation of the process of learning and its inheritance. जय हिंद की बात जो करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन टू द नेशंस यूनियन, देश को हम लोग बात करते हैं। एंड स्पेशल फैसिलिटीज शुड बी ऑफर्ड
फॉर एजुकेशनल एडवांसमेंट्स इन लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। एक छोटी सी मैंने एक लिखी थी जो आपको ऐसी में आप यूज कर सकते हैं, ऐसे राइटिंग में, हिंदी में। कलम को हिंदी में लेखनी कहते हैं, कागज़ को कहते हैं यहाँ पे हम पत्र। किसान हैं तो भारत की सीमा पर कई लाखों की संख्या में खड़ा जवान भी है। जरा पर्दे की ओर से गौर से देखिएगा जी, 200 देशों की हमदर्द बहन हिंदुस्तान भी है। हिंदुस्तान को ही हम सब आर्याव्रत कहते हैं, इसकी गोद में हम निर्जन में भी रहते हैं। धरती माँ के प्रसाद पर सभी का अधिकार है, क्योंकि सभी भूखों निर्भूमि को भी प्यार है। जिनका ज़मीन नहीं है उन लोगों का भी अपना व्याख्या इसको एक्सप्लेन करेंगे। भूमिहीन भी भूमिपुत्रों की तरह कमाते हैं, किसान के खेत में मेहनत से फल उपजाते हैं। स्वतंत्र हिंदुस्तान में सभी कैसे धनी बनेंगे? क्या गरीब किसान गरीबों को लाभ का भाग देंगे? दिल्ली के पास पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश है तो अच्छी बात है। हमारे भारत में मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार भी तो है। लोग घर परिवार छोड़कर हजारों मील आते हैं, फिर भी मुश्किल से 2 जून की रोटी खाते हैं। क्या उनको तरक्की करने का अधिकार नहीं है? क्या वे किसानों के व्यापार में पटीदार नहीं हैं? भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, यही तो सेवा है। वह भी तो खाना चाहता माखन मिश्री मेवा है। देशभक्ति की चुनौती को सहर्ष स्वीकार कीजिए, साथ में धनी बनने का नाता जोड़कर प्यार कीजिए। हिंदुस्तानियों की एकता बढ़ेगी कैसे? ज़रा गरीबों की भावी पीढ़ी का विचार कीजिए। हर हर महादेव। फिर कांग्रेचुलेशंस इंडिया है, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हमारा हुआ था। एक है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर रिलेटेड चीज़ है। ऑन्कोलॉजिकल शोध एवं अनुसंधान के क्षेत्र में यह सभ्यता को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बढ़त हासिल हुई है। इस परियोजना से जुड़े सभी भाई बहनों को तहे दिल से बढ़ाई है। सभी को जय हिंद। इसमें कुछ लिंक दिया गया, उसको फॉलो करेंगे तो समझेंगे। अब WHO और कॉमनवेल्थ ने एक पार्टनरशिप किया कि जो डेटा हैं उनको कैसे साझा किया जाएगा और उनसे कैसे लोगों को एक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मदद की जाएगी। इन सारी चीज़ों को आप बाद में देखेंगे, आपका होमवर्क में हो गया। एजेंडा फॉर द पार्टनरशिप बिटवीन WHO एंड कॉमनवेल्थ, ये कहते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल जो डेटा हैं रिसर्च रिलेटेड, उनको साझा की जाएंगी और इस तरीके से साझा की जाएंगी कि सारे विश्व के बीच में इनका सही से आदान प्रदान हो, और जो रिसर्च की जाए अलग अलग बीमारियों के नियंत्रण के लिए वो इफ़ेक्टिव मैनर में लोगों को पहुंच सके। इसको लेकर के बहुत सारा उनके माध्यम से काम किया गया। इनको देखें, समझें, ये आपको एक मददगार साबित होती हैं। आगे देखते हैं। देश के कई राज्यों में विद्यालयों को पुनः खोलने का निर्णय वर्तमान की फेवरेबल वायुमंडल की परिस्थिति को ध्यान में लेकर के सुनिश्चित रूप से सरकारी पदाधिकारियों, राज्य के नेतृत्वकर्ताओं, महत्वपूर्ण हितभागियों, सांसदों, विधायकों, तकनीकी विशेषज्ञों एवं शिक्षाविदों के परस्पर समायोजन एवं परामर्श के आधार पर शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के विशेषज्ञों द्वारा स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं की पहुंच जन जन तक पहुंचाने के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस के रूप में काम करती है। विद्यार्थियों के सामुदायिक स्वास्थ्य की स्थिति की जांच करने के लिए एवं वातावरण के परिवर्तन के अनुकूल उनके शरीर क्रिया के अनुकूल प्रतिक्रिया के मूल्यांकन एवं आवश्यक शिक्षा, चिकित्सा एवं पोषण सुविधाओं की उपलब्धता एवं उन तक पहुँच सुनिश्चित कराने के लिए आदरणीय प्रयास है। प्रेम तोले भारत माता की जय। ये चीज़ चलता रहा है। ये अब्दुल्ला शहीद ने बात की थी, बताया। कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट इवन 2022 के रूप में अपना प्रेजेंटेशन दिया था। प्रकाश जावड़ेकर बोलते हैं मोशन ऑफ थैंक्स के ऊपर में। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्गार है, इन्होंने बोला है, इसको देख सकते हैं हम। माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के औचित्य एवं उनके प्रति सरकार के सजग एवं सतर्क जिम्मेदारियों को सावधानी से निभाने का एवं राष्ट्र हित में जनतंत्र द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तावित एवं अधिनियमित कानूनों एवं नीतियों को लागू करने की अपनी वचनबद्धता को अभिव्यक्त किया गया। तत्पश्चात लोकसभा के अध्यक्ष माननीय ओम बिरला के संबोधन के दौरान ध्वनि मत से धन्यवाद प्रस्ताव को अंगीकृत करने से हमारे देश की अस्थायी एवं संवैधानिक सरकार अपने देश की आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जनहित में कार्य करते रहेंगे। इसके लिए कार्यपालिका एवं विधायिका के सभी माननीय सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं भारत के एक नागरिक की ओर से हार्दिक आभार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय हिंद, जय भारत। इन सारी चीज़ों को समझेंगे तो ये आपको मदद मिलेगा, इनका क्या विस्तार है। राहुल गांधी जी ने भी भारत की ऐतिहासिक धरोहरों एवं नेतृत्वकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए वर्तमान सत्तारूढ़ भाजपा सरकार की विदेश नीति के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाया था। इन्होंने एक कुशल नेता के रूप में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार को प्रभावी वक्ता के रूप में
अपनी समीक्षात्मक परामर्श प्रस्तुत किया। यह एक योग्य एवं सजग जनप्रतिनिधि द्वारा जिम्मेदारीपूर्ण प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। माननीय भारत सरकार सुनिश्चित रूप से इनके आवश्यक सुझावों को भी भावी रणनीति निर्माण एवं समीक्षा सत्रों में सजगता से सुनेंगी। NHRC के साथ भी हमने कम्युनिकेशन की थी, एक हमने वहाँ पे एप्लीकेशन डाला था, इनसे रिलेटेड चीज़ को भी हमने आगे फॉलो किया, जिसमें कोरोना को लेकर के हमने रिक्वेस्ट किया था कि एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को लेकर के स्पेशल पहल की जाए, इसके लिए वहाँ से उन लोगों ने भी इसको माना। अब राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने भारत के गणतंत्र गणराज्य के रूप में संप्रभु भारत में अस्थायी सरकार की स्थापना एवं विभिन्न राज्यों में इनसे जुड़े राजनैतिक उतार चढ़ाव एवं केंद्र में सत्तारूढ़ सरकार के विभिन्न राज्यों में स्थायी सरकार के सुचारू रूप से संचालन संबंधित भारतीय राजनैतिक समीक्षा प्रस्तुत करते हुए अपने नेतृत्व कुशलता का परिचय देते हुए ऐसा विश्वास जताया कि वे कुशलतापूर्वक केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के मध्य कुशल प्रशासनिक समन्वय स्थापित रखने की वचनबद्धता रखते हैं। यानी वो ऐसा अपना बताते हैं कि कल्याणकारी राज्य का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके लिए वो अपना काम कर रहे हैं। इस प्रकार केंद्र सरकार की साख के बने रहने के विभिन्न आयामों पर उन्होंने प्रकाश डाला। साथ ही साथ स्वतंत्रता से पूर्व एवं स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद कांग्रेस एवं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के मध्य अपनी संस्मरणों को साझा करते हुए मजबूत केंद्र सरकार के संचालन की अपनी वचनबद्धता को प्रदर्शित किया। इन्होंने सरकार में जनता के हितभागियों एवं बुद्धिजीवियों की प्रक्रिया के अनुसार सहभागिता की सराहना की कि लोग मिल करके काम करें। इससे इन्होंने ऐसी सकारात्मक अभिव्यक्ति एवं प्रभावी प्रशासन की निरंतरता हेतु संबोधित किया। मुझे तो ऐसा महसूस हुआ कि बहुआयामी विषयों की गहरी समझ रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहकारी संघवाद के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा रखते हैं और एक प्रभावी अभिभावक के रूप में सरकार के प्रबंधन प्रतिनिधि मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपने प्रबंधकीय कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों के प्रति सेवा भाव को से समर्पित रहते हैं। आपके प्रति सम्मान अभिव्यक्त करता हूँ, इनसे जुड़ी बात है। फिर आगे बात करें देखें तो यूक्रेन की उभरती विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वार्ता के द्वारा अपने शांतिपूर्ण माहौल की सतत स्थापना एवं निरंतरता की ओर अपनी अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धता को प्रदर्शित किया था। उनसे रिलेटेड जानकारी है। रशिया, फ्रांस, यूक्रेन, EU, नाटो, पीस एकॉर्ड है, उनको समझ सकते हैं। फिर यूनेस्को की फोरसाइट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 सस्टेनेबल एजुकेशन को लेकर के। वेद व्यास जी के बारे में साथ में कहना चाहूँगा कि एक अच्छे भक्त थे, इनका नमस्कार करते हैं। अब गरीबी एक विचारधारा है, द प्रिंट द्वारा इसकी व्याख्या की गई है। यह एक एससी का टॉपिक है, इसको देख करके आप समझ सकते हैं। तो पढ़ने में सहयोग करेगा तो उसको बहुत आभार होना चाहिए, एक ऐसी बात है। अब किसी को बताएं तो भी वे मदद करेंगे नहीं तो उपदेश देंगे। भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अब एक विश्व है, इसमें महाद्वीप हैं, सभी द्वीपों में रहते मनुष्य हैं, मानवों को होती बीमारी है, स्वास्थ्य आपदा निदान भविष्य है, सभी का निश्चित उपचार हो, स्वास्थ्य हेतु वैश्विक संगठन है, वित्तीय सहयोग भी जरूरी है, वो धनी है या अधनम है, मतलब गरीब है या अमीर है, अंतर्राष्ट्रीय मंत्रणा निरंतर है, ट्रॉपिकल डिजीज़ में अंतर है, मतलब अलग अलग जो देश की जो बीमारियां होती हैं उसमें अंतर होता है, स्वास्थ्य पर जलवायु का प्रभाव है, कोरोना संक्रमण नियंत्रण भाव है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की अपील है, स्वास्थ्य रक्षा के खर्च कई नील है, सबकी सुरक्षा व्यवस्था भी जरूरी है, चाहे वे जनता, राष्ट्राध्यक्ष या वकील है, व्यक्तिगत या संस्थागत तौर से दान दो, चिकित्सीय परामर्शदाता को सम्मान दो, संप्रेषण प्रशासन प्रबंधन का ज्ञान लो, बजरंग बली को सब भगवान मान लो, आदर भक्ति से मन में ही बोलो जय श्री राम जय हनुमान। अब इसमें फिर आगे चलेंगे, ये जरूरी है। अनदर एडवांसमेंट्स हुआ है इनटू द डेवलपमेंट ऑफ SARS-CoV-2 मैनेजमेंट थ्रू डेवलपमेंट ऑफ आइवरमेक्टिन, एक वैक्सीन को डेवलपमेंट किया गया। जय बजरंग बली। अब आगे होती है, मैंने भी किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपशब्द नहीं कहे, या प्रधानमंत्री को नमस्ते करके हमने अपनी बात को रखी थी। यह प्रिंट है, बलूचिस्तान के ऊपर इनका एक प्रेजेंटेशन आता है। जय हिंद, प्रणाम मास्टर साहब, पद्मश्री मिलने पर शुभकामना। एक बुजुर्ग मास्टर साहब को सम्मान दिया गया था, उनसे जुड़ा हुआ जानकारी है। अब WHO और कॉमनवेल्थ को लेकर के बात है। मच नीडेड इन करेंट कॉन्टेक्स्ट फॉर लिबरलाइजेशन ऑफ द हेल्थ मैनेजमेंट डेटा एक्सचेंज एट नॉमिनल एक्सपेंडिचर among the member states.
कृष्ण को नमस्ते करते हुए आगे बढ़ें। ना तो यूके प्रेस ब्रीफिंग है अबाउट एक्यूमुलेशन, delegation, deployment and dialogue of resources and personnel into the identified territories vulnerable of armed conflict and clash, and NATO expresses the resolutions for adherence with the process of series of dialogues and delegations with a special reference to negotiate with USSR allied about negotiations on negotiable parameters of conflict resolution with Ukraine. Earlier into the morning, Beyond reported about accumulation of allied forces into the border areas of Russia and Ukraine. Perspective of the Foreign Minister Russia, as expressed and reported by Reuters Times, should be responsive with reference to the notified indicators for demarcation of the issues as potential of conflict. जो विवाद के विषय हैं उनको चिन्हित करके उनको निराकरण के लिए प्रयास हो, इसके लिए आपसी संवाद की बात की गई थी. With reference to the recent resolution passed by joint statement of France President Emmanuel Macron and President Putin, released onto the sideline of the meeting of the President Putin with the Chinese counterparts Xi Jinping. इनके साथ मिलकर के इनका बात हुआ. Russian Foreign Minister notification about the Russian stance in this matter as discussed with his British counterparts as released an hour ago. इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं. यूक्रेन प्रेसिडेंट स्पोक अबाउट डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस. कनाडा ऑफर करता है सपोर्ट किसको? यूक्रेन को. उस समय की बात थी. ग्रेविटास का रिपोर्ट आया यूक्रेन को लेकर के, ये उसकी बात थी. मैक्रोन ने से किया कि रशिया एंड यूक्रेन क्या करेंगे, कमिटेड हैं मिन्स्क अकॉर्ड को लेकर के. अगर इसको मानते हैं तो उनका विवाद क्या होगा, सुलझ जाएगा. ऐसी बातें निकल करके आई. फिर एम्बिशंस एंड प्रोस्पेरस बीजेपी मैनिफेस्टो फॉर वाराणसी प्रेजेंटेड बाय यूनियन आईटी मिनिस्टर श्री अनुराग ठाकुर. इनको देखेंगे समझेंगे तो हमारे राष्ट्र की जो नीति है उनकी भी जानकारी हमको मिलेंगी. एक हमने ये लिखे, एन अपील टू गॉड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स ऑफ द अर्थ और प्लेनेट अर्थ. 11 फरवरी को ये हमने लिखा. टू द गॉड सब्जेक्ट है लिविंग इंटरेस्ट लिटिगेशन टू इंश्योर जस्टिस टू ऑल लिविंग क्रिएचर्स व्हाइल डिसाइडिंग डेस्टिनी ऑफ दिस प्लेनेट अर्थ. Our dear Father God, we all living creatures bow down to you. With due respect, we would like to share our gratitude to you for the beautiful life you gave us. We all creatures of this planet had conferences using solar spectrum. We discussed about future of life on Earth. We are sharing this brief report to you for your kind review and consideration. We had been thankful to you for creating us in diversified life forms. We are thankful to you for creating self-regulated biogeochemical system on this planet Earth to sustain life forever. You organized and channelized the flow of energy through self-regulated system of conversion of cosmic energy into chemical bond energy and subsequently its further cycling. You have regulated the sustainability and balance of life on this planet through the perfect determinants of time. You gave us different lifespan with certain special characteristics to occupy our desirable space in the living system. You gave us limited power to take care of our basic struggle for existence. We never blamed you for all struggle we faced to survive on this beautiful planet. Instead of our continuous struggle for existence with your life regulating forces, which often destroys our habitat and make our family to struggle for their existence. We never blamed you for all such incidents. We are still thankful to you for your greatness, and we will remain forever till the time we extinct from this beautiful planet Earth as millions of our extinct fellow flora and fauna. Thou we had been loyal to you and remain forever. We have a genuine concern to put forward for your kind review and consideration. It is related with one our fellow living creatures on this planet Earth, we, the human. Although we had been communicating with you in our specific language, we had decided to occupy the human made interface of language and technology to acknowledge our genuine concern with our fellow human, also for kind review and consideration. As of now, you must have consulted with your experts to resolve the natural form of this planet Earth and future of our occupancy over it. You must have planned, as usual, for suitable alternatives. We have a genuine concern to share with you that ensure justice to us while deciding future of life on this earth. As far as our role on this planet Earth is concerned, neither we nor any of our forefather living species had ever violated your instructions and dared to destroy the natural characteristics of the environment.
you gave us so far. We might have played the role of keystone species in different species for some time, but we did not ever dare to deteriorate environment. We did not ever create any circumstances which might challenge the existence of life on Earth. Still, we are praying you to forgive us for our forgotten sins. We all request you to restore the living conditions on this earth for existence of our offspring, or bless us with power of consistent genetic evolution to cope up with the adverse living conditions on this earth. Now we want to express our concerns to you. Dear Father God, as living creatures of the planet Earth had been exploited harshly by your most powerful creation, the human. They did not follow any promise to you as they would be, taking care of the forms of life on this planet Earth, and ignorantly or sinfully they had been distorting the living conditions for all living beings on the name of the so-called civilization. Dutch civilization means deviation from the path of love, compassion, companion, and global brotherhood. Are their special power of brain allows them to neglect your directions? Could they do anything to fulfill their aspirations? Are they especially empowered to violate our rights? Do they project themselves as God of earth by projecting you in the form of religion and rituals? They had been avoiding the message of your beloved messenger on this earth. We did not follow your order to sacrifice our life for the existence of human on this earth. Did human ever acknowledge the same? Didn't we suffer the brutal and heinous act causing extinction of millions of our fellow brothers and sisters of different species? Did humans have ever taken any appropriate measures to do so? Nowadays, they are advancing in vitro conservation techniques to do so, but you must be observing their intent. Is it to restore extinct life form, or they are planning for another set of organisms to meet out their future food demands? Why don't they fulfill their commitments made during different conventions to ensure sustainable development of life on this earth? Your basic elements, fire, water, earth, ether, and air, had been witnessing about all such immoral acts of your fellow human beings. We had organized ourselves into empowered functional organizations with beautifully decorated promises to protect the existence of life on the earth. One of such promises is United Nations Sustainable Development Goals 2030. It will certainly help future of the earth and its occupancy by humans. Does it ensure protection of our rights? Yes. Although He gave us the liberated life, why these humans have changed themselves through self-made chains? Why they have created religion, ritual, sect, caste, culture, class, language, territorial boundaries, nationality, and sexuality, which have altered their natural identity. In last 11,000 years, they might have discovered and invented several materialistic things, but they have lost union with their spiritual being. Even our genus has different species forms of life. We never discriminate us on such basis. Why these humans do so? We might have interspecies and intraspecies struggle, but it never causes killing of millions of our fellow flora and fauna simultaneously. But why these humans have been performing mass homicide since the age of civilization? Why they have fought millions of war on your name? Why they are still fighting war against their fellow brother and sister, and still almost 90% of the fellow brothers and sisters are suffering from the shortage of the basic living facilities. You must have observed the nudity of their aspirations during ancient, medieval, modern, and contemporary era. You might have noticed rise of devils in the form of brutal human, bloody human. The way these humans classifies and isolate their fellow brothers and sisters as enemies and kills them mercilessly. How can we trust these devil humans to ensure protection of life on this planet Earth? How can we remain calm and contented by leaving our future in the hand of these humans? Although they have created United Nations after devastating world wars, they never intend to fulfill the commitments they made to ensure peace and prosperity on this planet Earth. They are fulfilling certain extent. Actually, few of the cunning people have categorized themselves as politicians and projected themselves as the representatives of all human on this earth. Though we do not participate in election to elect them, they never miss the opportunity to project themselves as our representatives too. Collectively, maximum 1% of humans are determining the future of life on this planet Earth through their selfish aspiration-led agenda and declarations. Nowadays, human had become more devastating through weapons of mass destruction.
We do not dare to protest in front of them about our common concern. We are sharing our concern to you. Still, we fear to get misunderstood by these humans. They have developed advanced technology of exploration. They are trying to reveal the natural principle of origin of the universe. They may aspire to replace you too, guide their consciousness. We would like to inform you about few anthropogenic organization who aspires to aware, organize and involve more people living on humanitarian values of our common earth future and universal brotherhood to promote the ethics and ethical values of living as taught by your messenger to us. Such organizations are United Nations Human Rights Council, World Health Organization, ICJ, NHRC, UNICEF, UNESCO, and many more multilateral organizations, government organizations, and civil societies. They aim to organize all humans of the world as universal human family. These organizations aim to create all-inclusive society. We hope this will not exclude other creatures of the planet Earth. We all living creatures of the world is praying you to include intrinsic inspiration to all humanitarian human of the planet Earth to organize together to live their life on humanitarian principles and to ensure existence of life on this planet Earth. We expect that UN will look after our common concerns expressed in this request letter to you and expect that these fellow brothers and sisters will remain loyal to you and moderate positive discussions in community as well as organize positive advocacy with existing system of global governance to ensure protection of living rights of all livings of this planet instead of fighting in the name of disputed issues. We expect that after receiving this letter, they may draft Universal Declaration of Living Rights and act to implement it. With due respect and devotion, Chandan Kumar Mishra, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, राइटर एंड योर डिसाइबल। आगे जो बात है उसको पढ़ेंगे, इन सारी चीज़ों को साझा करेंगे। तो ये एक लेक्चर आपके साथ हमने साझा किया, फिर आगे साझा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। फिर अगले लेक्चर में आपके साथ आगे के क्लास को शेयर करेंगे। थैंक यू।